مجید صالحی، قطایون ریاحی، پرویز فلاحی پور، رامین ناصر نصیر، اسماعیل سلطانیان، سرگرداں روح۔ یہ رہا، یہیں پر ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ ارے بھائی، اس کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے، دیوار پر سے ہی جانا پڑتا ہے۔ دیکھو جلال، اگر مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو بہت برا ہوگا۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اتنی رات میں سفر کو بلا کر دروازہ کھولنے کو کہوں گا کہ تم لاش دیکھنا چاہ رہے ہو تو تمہاری غلطی ہے یہ۔ اسے ہٹاؤ۔ محترمہ، دیکھو جلال صاحب، ہمیں تم پر شک تو نہیں ہے، بس ہم ذرا سا اطمینان کرنا چاہتے ہیں نا۔ بالکل ٹھیک ہے، میں چلا، یہیں سے چلنا ہوگا۔ چلو۔ رکو۔ کیا ہے بھائی؟ رکو۔ ارے جا رہا ہوں دیوار سے اس طرف۔ اچھی بات ہے، رکو رکو۔ دیکھو وکیلی، اگر یہ سفر آخرت جاگ گیا نا تو ہم دونوں کو باغ کے اندر لے جا کر کسی گڑھے میں دفن کر دے گا۔ ہاں، اچھی بات ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میں کیسے آؤں گا؟ میں دروازے کو پکڑ کر اوپر آ جاؤ۔ اوپر چڑھ کر؟ ہاں ہاں۔ یہ پستول نہیں۔ اے محترمہ، ذرا لیں اس کو۔ آؤ۔ خبردار ہلنا نہیں۔ محترمہ ذرا وہ دیں پستول۔ رکو، کہا رکو۔ دیکھا دیکھا، بھاگ گیا نا آخر۔ چیخو نہیں، آہستہ۔ کیسی بات کر رہے ہو؟ میں دروازہ کھولنے کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر مجھے اوپر آنے کو کیوں کہا؟ پاگل۔ بھائی تھوڑا سا ایڈونچر بری بات تو نہیں ہے۔ محترمہ آپ تشریف لائیں بس۔ اچھی بات ہے۔ اب میں کیسے نیچے آؤں؟ کیسے آؤں؟ کیا پتا، میں ہمیشہ اوپر گیا ہوں یہاں سے، ابھی تک یہاں سے نیچے نہیں آیا، کیا معلوم۔ محترمہ آپ تشریف لائیں۔ ٹھہرو ٹھہرو، پاگل۔ مجھے دیکھو کہ میں نے اس پاگل کی بات مان لی۔ یہ دروازہ تو ہمیشہ کھلا رہتا۔ رکو۔ آئیے، دیکھیے یہاں، دیکھیے کتنا اچھا منظر ہے نا۔ یہ کیا ہے؟ قبر کے پتھر ہیں۔ قبر کا پتھر؟ اور کیا، یہاں وہاں تک قبرستان تھا، ہو سکتا ہے آپ کے پیروں کے نیچے بھی کوئی قبر ہو۔ تمہارا پلان کیا ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے اسی بات کی محترمہ، میں نے کہا کہ یہ قبرستان ہے بس۔ جلال صاحب، ان کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا اور اشرف صاحب کا پلان کیا ہے؟ لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ہم اشرف صاحب سے ملنے تو جا رہے ہیں۔ دیکھا، کہا اشرف صاحب، تمہاری پول کھل گئی ہے جلال، اشرف صاحب زندہ ہے۔ نہیں، میری مراد ان کی لاش سے ہے محترمہ۔ تو کہاں ہے لاش؟ دکھاؤ ہمیں۔ ہاں تو یہ پتھر، یہ سب کچھ نہیں، اس طرف وہاں ایک جھونپڑی ہے۔ بس میری آپ لوگوں سے یہی ایک التجا ہے کہ سہ فریقی اتحاد نہ ٹوٹنے پائے۔ چلو۔ وکیلی، محترمہ، وہاں یہاں بھی پہلے قبر کا پتھر تھا۔ چلتے رہو۔ وکیلی، ایکسکیوز می، محترمہ آپ نے کیسے ہی کیا؟ براہ کرم میری پستول مجھے دے دیں۔ دے دیں۔ اب ایسا نہ کرنا۔ اوکے۔ تو صاحبان یہی جگہ ہے، یہ، لیکن یہاں سے جانا ہوگا کیونکہ دروازہ بند ہے۔ جلال، پریشان کر رہے ہو یا پھر ایڈونچر وغیرہ کا چکر ہے؟ نہیں محترمہ، یہ دیکھیے تالا بند ہے، یہ دیکھیے۔ ٹھیک ہے، پہلے تم جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ میڈم، براہ کرم میرا پستول لے لیں۔
चलो किनारे हटो। हटो मेरा पिस्तौल। अरे अरे आप आइए अरे मोहतरमा, आइए। वो दरवाजा खुला ही हुआ था भाई, अगर दरवाजा खुला था तो मुझे इस तरह से आने क्यों कहा? सोचा थोड़ा एडवेंचर हो जाएगा। खुदा तुम्हारे इस एडवेंचर को और तुम्हें दोनों को। आओ 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 वकीली, ये है, ये रहा। खोलो खोलो। मुझसे क्या मतलब? तुम लोग देखना चाह रहे हो? मैंने कहा खोलो। जा भाई। वकीली तुम कर सकते हो। मैं डर गए ना? मुझसे क्या मतलब? तुम लोग ही देखना चाह रहे थे। अरे धोखेबाज, कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? मुझसे पूछ रहे हो कहाँ है? फिर किससे पूछेंगे कहाँ है? बताओ कहाँ है? मोहतरमा, अम्मी की रूह की कसम यही थी। हर रोज मैं आकर यही लाश के अंगुलियों के निशान लगाता था। अब पता नहीं कहाँ चली गई। दुनिया में आज तक कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ जो वकीली को बेवकूफ बनाए। वकीली ये ना करो, चुप रहे। हिमाकत नहीं करो। इस लड़के से कहे हिमाकत न करे। देखो मेरा दिमाग अचानक ही खराब हो जाता है, और फिर अगर मुझे मार डालोगे तो भी कुछ नहीं होगा, लाश तो तुम्हें मिलेगी नहीं। क्यों नहीं, बहुत कुछ होगा। अब मैं जो सोचता हूँ तो बात समझ में आती, बहुत फायदा होगा। कोई फायदा नहीं है। बहुत फायदा है। तुम्हारी कसम कोई बहुत फायदा नहीं फायदा है। मोहतरमा। पागल। मारने का ये फायदा होगा कि हम ये समझ जाएंगे कि शराफ साहब जिंदा हैं या नहीं। अगर जिंदा होंगे तो तुम्हारी मौत के बाद बिल से निकलना ही होगा उन्हें। अगर मरे होंगे तो फिर खुदा हाफिज। ठीक है, लेकिन अगर मुझ बेगुनाह का खून बहाया तो परेशानी में पड़ जाओगे। सुना नहीं है बेगुनाह का खून फंसा देता है। अब मुझे अपने मुंह में मिट्टू नहीं बनना है, लेकिन मेरा खून बहुत बासर है। हम लोग तो नस्ली तौर पर ऐसे हैं, हमारा खून जाया नहीं जाता। तुम्हारी गलती नहीं है, हमारा घराने ऐसा है। मैं दिखा दूंगा बाद में। कह रहा है लाश दिखा देगा। हमसे खिलवाड़ कर रहा है ये। कसम खा के कहता हूँ ऐसा नहीं है। तुम वकील हो ना, तुम्हारी कसम। इस तरह की जगह घड़े वगैरह बहुत बाग में बहुत ज्यादा है, कुछ समझ में नहीं आता। उस तरफ भी ऐसे ही एक जगह है, खुदा की कसम बहुत खूबसूरत है। दरख्तों के बीच से गुजरना होता है, छोटी सी जगह है। अच्छी बात है, बस अब आखिरी बार तुम्हें मौका दे रहे हैं, समझे? ठीक है। चलो, अब अगर कोई गड़बड़ की तो फिर मेरा भेजा घूम जाएगा। असल में मैं जरा परेशान हूँ। बस आप लोगों से गुजारिश है कि सह फरीकी इत्तेहाद को भूलिएगा नहीं। चलो ठीक। आइए मोहतरमा, आप आइए। कुछ पता है कहाँ जा रहे हो? मोहतरमा भाई, मैं सब कुछ खुद भूल गया हूँ। इस तरफ था, उस तरफ था, इस तरफ था, वही था। बस पहुँच रहे हैं। अच्छी बात है, चलो। ओह, इस दरख्त को क्या हुआ? एक मिनट रुके। रुको। भाग गया। जलाल, तुम्हारा खून हो गया हलाल। मार डाला? तुमने उसे मार डाला? जलाल साहब, मेरी आवाज सुन रहे हो? तुमने उसे मार डाला। मैंने इसके अलावा हर काम किया है। जरा जाके देखें, मर गया। तुम खुद ही जाओ। दोनों चलते हैं। मैंने कहा मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? मैंने कहा क्यों मारना चाहते हो? जलाल, 3 तक गिनूंगा। अगर सामने नहीं आए तो शरारा साहब को कत्ल कर दूंगा। नहीं, बस मैंने कह मुझे दिया। नहीं मारो। मजाक नहीं कर रहा हूँ। मुझे कत्ल नहीं गिनती करो। शुरू। 1, नहीं करो। 2। नहीं, प्लीज नहीं। देखो, नहीं, 2 मैंने नहीं, कह दिया मुझे है। अब नहीं तुम्हारे पास कत्ल मौका करो। नहीं है। 3। ठहरो, रुक जाओ।
बस आप लोगों से गुजारिश है कि सफर का इत्तेहाद टूटने ना पाए। मुझे लगा कि इत्तेहाद टूटने वाला है। हाँ मोहतरमा, इसने गोली चलाई, मैं हट गया, गोली बिल्ली को लगी। बिल्ली? बेचारी। काश ये सारे चालाक लोग तुम्हारी तरह रहमदिल होते। अगर जलाल नहीं आता तो क्या करते तुम? मैं भी इसी से डर रहा था। नहीं मोहतरमा, मैं जरूर आता। शैतान। तुम्हें कह रही हैं। लाश कहाँ है? भाई लाश उसी झोपड़ी में होगी, और कहाँ होगी? मैं वहीं जाकर उंगलियों के निशान कागज पर लगाता था। जलाल साहब। मोहतरमा, अम्मी की रूह की कसम, मैं चलो सच कह रहा जल्दी हूँ। करो। सफर आखिरत भी पता नहीं कहाँ मर गया। जैसे उसके बाल जलाए फौरन मेरे पास पहुंच जाता था। आज लेकिन उल्टा हो गया, पता नहीं क्यों। अजीब बेढाबा आदमी है। एक जोड़े से ज्यादा कपड़े भी इसके पास नहीं है। अरे हाँ सुने, आप लोग यहीं रुके, मैं उसे तलाश करता हूँ, शायद लाश उसी के पास हो। जलाल साहब, तुम फिर मुझे इसके पास छोड़ के जाना चाह रहे हो? देखो, अगर इनका बाल भी बेका हुआ तो पिस्तौल लेकर जमीन में दफन कर दूंगा, और फिर कुछ ऐसा करूंगा कि इस कब्रिस्तान में तुम्हारी कब्र भी बन जाए, समझे? अच्छा है, तरक्की की है, कत्ल भी कर लेते हो। किसकी इजाजत से? सफर चाचा, सफर चाचा, सफर चाचा। ये मेरे चाचा है। तो तुम्हारा साथी है? नहीं, ये वही चाचा हैं जिनके बारे में बताया करता था कपड़ों का जवाब नहीं है। मुझे ये कपड़े आपका जिक्र है। लाश कहाँ है? किसकी लाश? अशरफ साहब की लाश। अच्छा, वो महफूज है। महफूज है? महफूज है? क्या महफूज है? लाश। हाँ, देखा, मैंने कहा था ना महफूज है। तो महफूज है। हाँ, महफूज है। देखें सफर साहब। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, मुझसे कह रही है। देखिए जनाब, हम लाश को एक नजर देखना चाहते हैं, और देखे बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। देखने से कुछ फायदा होगा? हाँ भाई, इनको इत्मीनान हो जाएगा और मेरे पीछे पड़े नहीं रहेंगे। हाँ भाई। जो चीज तुम लोगों को मालूम होनी चाहिए वो ये है कि अशरफ साहब मर चुके हैं। मौत एक दिन तुम सबको आ जाएगी, याद रखना। हाँ तुम्हारे पास भी आएगी। हाँ। देखे सफर साहब, आप इस पोजीशन में नहीं है कि हमें हुक्म दे, या आप बताएंगे कि लाश कहाँ है, या मैं यहीं तीनों को ढेर कर दूंगा। दिखा क्यों नहीं देते? देख ही रहे हो कि इसका दिमाग खराब है, पागल आदमी है। क्यों चाहते हो कि हम भरी जवानी में सिधार जाएं? हैं? चलो। जलाल, तुम्हें यकीन है तुम्हारा काम ठीक है? हाँ भाई, इसे जैसे ही कुछ माल पानी मिल जाएगा, रबाबा साहब का ढूंढ लेगा। तो तुम खुद ही तलाश कर लो। क्या कह रहे हो? कौन है, कहाँ है, मुझे कैसे मालूम? मैं कैसे ढूंढूं? रास्ता जितना लंबा होगा, लालच का इम्कान उतना ही ज्यादा होगा। जलाल और लालच? लालच क्या चीज है? वक्त जाया ना करो, देर हो जाएगी। नहीं, लेकिन वो खुद कहाँ है? हाँ, हमेशा मौत की तरह सर पर सवार रहता था। कहीं ऐसा तो नहीं उसे उठा ले गया हूँ, वहाँ उसका इंतजार हो रहा था। हंसो मत। हंस नहीं ना हूँ। हाँ? कहाँ हंसना हूँ? ये वापस कब आएगा? शायद अब वापस ही ना आए। अपने लिए ही सही दुआ करो कि वो लौट आए। क्या यार तुम ये सफर चाचा, फिक्र न करो, मैंने इसका भी तरीका ढूंढ लिया। पहला कदम गलत है, लेकिन फिर सही है। ऐसा कि अल्लाह पहले कदम को माफ कर दे। तुम्हें यकीन है कि पहले कदम के बाद मौका होगा तुम्हारे पास? Excuse.
इत्मीनान हो गया तुम लोगों को? नहीं, ये ऐसा क्यों है? मुर्दे ढोता है, इसका नाम सफर आखिरत है। मालूम है, लेकिन कहीं लाश लेकर गायब न हो जाए या ब्लैकमेल करके चौथा फरीक बन जाए। हाँ, मुझ पर शक करो, लेकिन इस सफर आखिरत पर शक न करना। तो फिर लाश को उसने क्यों छुपाया था जलाल साहब? मोहतरमा, असल में ऐसा नहीं कि मुझे नहीं मालूम, मालूम है। बताओ। वकीली। एक्सक्यूज मी। असल में उसने मेरे लिए ये नहीं किया है, अशरफ साहब के लिए ऐसा किया है। इस तरह से वो उनकी मदद करना चाहता है। असल में उनकी रूह बहुत परेशान है, बहुत। अम्मी की रूह की कसम, मुझे मालूम था कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे। अब लाश हमारे कब्जे में है। फिलहाल रुके रहो, कागजात मिल जाने दो, उसके बाद। क्या हुआ बेटा? हाँ, चोट तो नहीं लगी तुम्हें? कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगी। आ जाओ मेरा बेटा, चलो बेटा। अशरफ साहब, मुझसे नाराज मत होना। तुमने भी बहुत कमाल किया है। तुम चाहते थे सरफरीकी इत्तेहाद। कौन इनकार करता है इसका? क्या कहना, क्या कहना। एक मिनट जलाली, तुम्हें लगता है कि तुम उस रूह हाजिर करने वाली रविश से कुछ कर सकते हो इसका? क्या हुआ, बकवास पर ईमान ले आए? हाँ, समझ लो हिमाकत है। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा लगता है जब रंग बदलते हो। शर्म भी नहीं आती है तुम्हें वकीली, हैं? अच्छा, यहाँ आओ। हाँ, तो क्या करोगे? कुछ तो किया ही जा सकता है, लेकिन कुछ शर्तें भी हैं। जैसे? जैसे एक मिनट, ये बताओ, पिस्तौल क्यों नहीं लाया है? तुम अपनी बात जारी रखो।
ٹھیک ہے جاری رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اصل کہانی یہ ہے کہ جس طرح تم نے مجھے پریشان کیا ہے اس سے ایک طرح سے سہ فریق اتحاد کو نقصان پہنچا ہے. مطلب میں بھول گیا ہوں. یہی اب تمہیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ مجھے وہ اتحاد پھر سے یاد آ جائے. زیادہ حصے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کی تو بات بھی مت کرو. زیادہ حصہ کون مانگ رہا ہے؟ ہاں کیا میں لالچی آدمی ہوں وکیلی؟ اچھا وہ 30 ملین ٹھیک رہے گا نا؟ اوف کچھ ایسا کرو کہ تمہارے کل رات کا احسان بھول جاؤں میں. تمہاری بھوک بڑھ گئی ہے. ہاں خدا کی قسم. دیکھا خدا تیرا بہت شکر ہے، ایسے وقت میں تو روٹی دیتا ہے کہ اسے کھانے کی طاقت ہوتی ہے. ہاں یہ کیا ہے؟ وہ اصل میں یہ ٹھیک رہے گا، یہ چلے گا، یہ بڑی اچھی بات ہے. اگر تمہیں بھی نہ پہچان پاؤں تو لعنت ہے زندگی پر. بہت اچھے آدمی ہیں. اچھا تو کب؟ ہاں آج رات. البتہ جب یہ چیک جلال جبروتی کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گا تب. اس اتحاد کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے، تم نے دیکھا ہے نا. اس پیسے سے خریدے گئے اعتماد کے لیے سمجھ لو کہ میں تمہیں بہت پسند کرنے ہاں، لگا اچھی ہوں. بات ہے. تو پھر کہاں اصل میں اسی وقت چلوں گا جب تم اس چیک کو اپنی خاص تکنیک کے ذریعے کیش کرا لو گے، ہے نا؟ ایک بات اور، ربابہ کے تو نہیں بھولے ہو نا؟ کاغذات ملنے کے بعد. یہ چیک کتنا جانا پہچانا یہ چیک. اسے میں نے کہیں دیکھا ہے. ہاں کل رات ہی تو دیکھا تھا. کیا ہو گیا ہے مجھے وکیلی؟ وعلیکم السلام. کیسے ہو بھائی؟ بس ٹھیک ٹھاک. سب تیار ہے ہمارا؟ ہاں بھائی وہاں رکھا ہے سامنے. چلو بہت شکریہ. ایک منٹ ذرا مجھے دینا. یہ ہاتھ مت لگاؤ. میرا ہی تو ہے. چلو چھوڑو، مجھے خود ہی اسے آ کے اچھی طرح سے دھونا ہوگا. یہ لو. خدا سلامت رکھے، خدا برکت دے. کوئی بات نہیں، میں نے کہا چھوڑو، میں عرق گلاب سے اچھی طرح دھوں گا اسے. ایک منٹ رکو. یہ بتاؤ بال بچے ہیں تمہارے؟ منگنی ہوئی ہے. اچھا تو یہ لو تمہارے لیے. بہت زیادہ ہے. کوئی بات نہیں، اپنی منگیتر کے لیے تحفہ خرید لینا. خدا آپ کی مراد پوری کرے. شکریہ. ناراض ہے یہ صاحب. ہاں امی میں آپ کا تو غلام ہوں، معاف کیجیے گا تھوڑی دیر ہو گئی. اصل میں خالی ہاتھ تھا نا. لیکن آپ خوش ہوں گی پتھر دیکھ کر. تم ہی تو ہو میرے دل میں بسنے والی ہے پاکیزہ ماں. تم ہی تو میری غمخوار اور دلدار ہو اے ماں. خدا تم پر رحمت کرے. دیکھا اب میں آدمی بن رہا ہوں، اشرف صاحب کا بھی کام کر رہا ہوں اور اپنی زندگی بھی سنوار رہا ہوں. آپ اطمینان رکھیں، کیونکہ میں یہ کبھی نہیں بھولوں گا کہ میرے کیا حالات تھے. لیکن میرا بہت دل چاہتا ہے کہ اس شوکت کے سامنے جاؤں اور نوٹوں کی اتنی گڈیاں دکھاؤں کہ اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں. لیکن کیا کروں کہ نرگس کی یاد کی وجہ سے کہیں دل ہی نہیں لگتا. چلو ذرا مالدار ہو جاؤں
तब देखूंगा कि जलाल साहब की मंगेतर से किसने शादी की है। खुदा तुम्हारी मगफिरत करे। खुदा उनकी मगफिरत करे। शुक्रिया। कुरान पढ़ो इनके लिए। हाँ, लेकिन पूरा पारा पढ़ना पढ़ सकते हो? खुदा हमारी मदद करेंगे। हाँ। शौकत साहब, शौकत साहब, अरे ओ शौकत साहब, मैं हूं जलाल। लेकिन वो जलाल नहीं जिसे तुम लिफ्ट नहीं कराते और आदमी नहीं समझते थे। जलाल जबरूती, जलाल मालदार। अब सुनो, मेरे बदन से भी पसीने की महक आती है और मेरे मुंह से भी पैसे की महक आ रही है। यकीन नहीं आता है? आओ देखो, आओ आओ, ये देखो कितने पैसे मेरे पास, देखो कितने पैसों से मेरी अहमियत होगी। गंजे गंजे, शौकत गंजे, लो, कितने में मुझे लिफ्ट दोगे? हैं? शौकत कहाँ हो? ए लड़की, तुम्हारे अब्बा नहीं है? नहीं, नहीं है। जहन्नम में जा इसकी ऐसी की तैसी। देखो, उससे कह देना कि जलाल आया था, उसकी हालत बहुत अच्छी हो गई है। उससे कह देना कि पहले वाले जलाल को भूल जाए। एक नया जलाल दुनिया में आया है जो शौकत जैसे 10 आदमियों को भी खातिर में नहीं लाता, समझे? उसे कह देना। हाँ जलाल साहब, पता है असल में अगर वादा करें तो मैं आपको एक बात बताऊंगी। अब्बा अब्बा, मुझे तुम्हारे अब्बा से कुछ नहीं लेना देना है। नरगिस की कसम, मैं आखिरी बार यहाँ पे आ रहा हूँ, अब कभी नहीं आऊंगा यहाँ पे। बस मेरा आखिरी पैगाम उस तक पहुँचा देना। कह देना कि बहुत बेवकूफ है, नहीं उसे कहना कि बहुत खबीस है, नहीं नहीं ये मत कहना, कहना कि बहुत धोखेबाज है, धोखेबाज है, गंजा गंजा गंजा।